प्रगति मैदान नई दिल्ली की इस पावन धरती पर पधारे हुए हमारे सभी आगंतुकगण, एंटरप्रेन्योर, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप लोगों को पता है कि हमारा जो वर्ल्ड फूड इंडिया है, दिनांक 25 से 28 सितंबर का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल दिनांक 25/9/2023 का शुभारंभ किया गया। हम सभी महानुभावों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं, जो इस कार्यक्रम में पधार कर हमारे फूड प्रोसेसिंग वर्कशॉप में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मैं A.K. विमल, फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर, डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में हमारे डायस पर उपस्थित हैं डॉक्टर MP सिंह, डिप्टी डायरेक्टर फूड प्रोसेसिंग, डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से। हमारे जो वक्तागण हैं, श्रीमती दीप्ति जी बैठी हुई हैं, अंतेश प्रताप सिंह जी हैं, मिस्टर अभिषेक चतुर्वेदी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मिसेस तानिया जी जो है इस कार्यक्रम का आगे की जो रूपरेखा है, कौन क्या करेगा, कौन क्या बताएगा, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगी। So a very warm good morning to everyone present, and thank you so much sir for such a good introduction and welcoming everybody. And I think we can begin with our session. And our first speaker for the day is Srimati Dipti Chauhan, MD Bhartiyam Foods Lucknow. And today she'll be speaking on the topic of improving farmer and women entrepreneurs' life, and she'll be guiding us on how she's been supporting them and what is the way forward for us. So please extend a very warm welcome for Miss Srimati Dipti Chauhan. Good morning to all the delegates, industry leaders, policy makers, and my fellow entrepreneurs. I am Deepti Chauhan, founder of Yummians Bhartiyam Foods. My own journey began in the corporate world, but I chose to step out of boardroom and step into the farms to grow my food, to build a business that was not only sustainable but also deeply rooted in purity, transparency, and farmer empowerment. Before I begin my presentation here, I would like to share a short video that captures my journey from farming to facing the challenge of perishability and finally moving into food processing with a vision for clean label, sustainable foods. This story is very close to my heart, and I believe it will give you the right context for what I am going to share today. Take a look at a story. Like many women farmers in India, Deepti Chauhan works hard to care for her family and community, but it hasn't always been so easy. क्या वैरायटी किस सीजन में कब लगानी है? Deepti is one of thousands of women farmers we're proud to support, because supporting them means we support their families and communities too. हमारी सबसे पहले जो हमने शुरू किया, हमारी मशरूम की अपनी खेती है। तो मशरूम के साथ जो सबसे बड़ी हमने प्रॉब्लम फेस की, बहुत पेरिशेबल नेचर का होता है मशरूम। एक दिन में ही अगर उसको धूप लग गई तो वो घंटों में ख़राब होता है। तो फिर उसके लिए जब मैंने सर्च किया तो पता चला कैनिंग करके एक प्रोसेस होती है, जिसमें जो सब्जी होती हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वही रहती है जो मैं फ्रेश खा रही हूँ। उसी न्यूट्रिशन वैल्यू पे कैनिंग में मैं उस प्रोडक्ट को 2 साल की उसकी लाइफ बढ़ा सकती हूँ। जो सामान है सारा प्योर है, कुछ भी सामान में हम मिक्स वाला नहीं लेते। हमारी फैक्ट्री में बनता है, हम कैन फूड बना रहे हैं, हम अचार बना रहे हैं, हम फ्रूट के जूसेस बना रहे हैं। Thank you. That video reflects the essence of my journey, from corporate boardroom to farm field and into food processing. Today, I want you to take deeper, not just into what I have built, but into the lessons and insights that every delegate here can take back. Because for me, this is not only about Yummians, my journey. It is about showing how food processing, when done responsibly, can become a bridge between farmers, sustainability, and
global markets. From corporate boardroom to farm fields, my journey into food processing. This is not just my company's story. It is about rethinking food system, where purpose, purity, and profitability can all go hand in hand. Food doesn't become unsafe because it is processed. It becomes unsafe when it is adulterated. The question we should really ask ourselves is not whether food is processed, but how it is processed. Today, social media often creates a hype that processed foods are not good. But processed food is the part of our life from the morning till late night. We are using atta, dal, chawal, everything. Just think of the food and sara khana processed hota hai. The real challenge lies not in processing itself, but what goes inside. Excess preservatives, artificial additives, and adulteration. That is why the idea of clean label is so important. It is about keeping food simple, transparent, and honest. So consumers know exactly what they are eating. You don't need a scientist every time to read the label of the food that you are eating. My learning is processing is not the villain. Done responsibly, it is the bridge that connects farmers, sustainability, and consumer trust. My story began in 2015 with protected cultivation. Growing cucumbers, bell peppers, started high-tech mushroom farming. But I quickly faced the challenge of perishability and supply chain inefficiencies. That experience led me towards food processing, which allowed me to better manage quality and shelf life. This was my biggest lesson. Innovation begins at the grassroots, when you work closely with farmers and understand perishability challenges. I saw firsthand how perishability equals to farmer losses. During COVID, when market closed, we all faced wastage becomes massive. That was my turning point. I realized the solution lies in value addition through processing. By extending shelf life, I could preserve freshness, reduce wastage, and ensure fairer incomes for farmers. जो आज खेत में तैयार हो रहा है, वो कल फैक्ट्री में सुरक्षित होकर दुनिया के बाजार तक पहुंचाए. इसी सोच के साथ, इसी विज़न के साथ मैंने अपनी छोटी सी एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की. Every crisis can become an opportunity if you align innovation with market demand. Under the Uttar Pradesh Food Processing Policy 2023, I established a modern food canning line. Here my focus is very clear. No adulteration, only safe additives and clean label products. I also installed under this policy a solar power plant at my facility, so sustainability is central to my operations. My learning over here is policy support plus entrepreneurship and sustainability is directly equals to globally competitive food ecosystem. This is my portfolio of clean label foods. It includes canned mushrooms, which I grow and then process, pack into can, and is readily available for consumers directly from the farm to your table. Other pickles, juices, raw honey. Every product is built on one principle, purity and trust. My learning over here is, in food trade, brand trust matters as much as taste. At Yummy Ends, I believe less is more. All my spices are in-house prepared. My facility is having ISO certified. All this sourcing is from trusted farms, FSSAI certified vendors, and every process is kept transparent. My learning over here is vertical integration is from sourcing to processing, ensures authenticity and builds long-term global trust. My mission has always been farmer first. I source directly from farmers and make sure they get a fair value for their produce without layers of middlemen. When I say bridging the gap, I mean creating a direct connection between farmers and consumers through processing. Farmers often struggle with three key challenges:
price volatility, perishability, and limited access. Small and marginal farmers rarely have the network to reach premium products, premium markets. By processing their produce, I turn their perishable crops into value added products with a longer shelf life. This allows me to give farmers a stable price, reduce their wastage, and bring their hard work to the global market. छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये सिर्फ एक उनकी आय का साधन नहीं, ये उनके लिए एक गर्व और सुरक्षा का साधन है. My work has been recognized with awards from Government of Uttar Pradesh, Walmart India, and others. These milestones prove that clean label businesses are not just good for society, they are also commercially viable. My future vision is bold: to expand into more healthy clean label foods, to take India's treasure like the cherry mango, very close to my heart, to the global stage. And by 2035, to build my brand into a unicorn startup and a global household brand. Global expansion must balance quality assurance, farmer empowerment, and consumer trust. My key takeaways to summarize: processed food, when done right, is safe and essential. Clean label builds trust and transparency. And value addition bridges the gap between farmers and global markets. That is the essence of my philosophy: processed with purpose. Thank you all, and I warmly invite you to visit my stall at Hall K1, first floor, Horticulture Pavilion, to experience my clean label products firsthand. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such an insightful session, and we want to congratulate you for your success and all the best for your future vision. And with that, we will call our next speaker. We have with us Mr. Abhishek Chaturvedi, who is the MD of Zagrication, Lucknow, and he is going to speak with us on the topic of reinventing India and India's daily staples back to taste of childhood. So please extend a very warm welcome to him, please. Hi, good morning. My name is Abhishek Chaturvedi. I warmly welcome you to this small session. I'll not take much of your time. We have started this company Zagrication LLP with the brand Go Narishi, which is not yet another snack story, because clean label and daily staples, nobody is talking about daily staples. हम जो रोज खाना खाते हैं उसमें क्या पड़ रहा है ये कोई नहीं जानता. सब लोग ये जानते हैं कि जो बिस्किट आ रहे हैं, जो प्रोटीन बार्स आ रहे हैं, वो कितने हेल्दी हैं. So what we are trying to do is, we are trying to do something which nobody is thinking about, reinventing the daily staples. आपका जो डेली स्टेपल है, ये जो आप फ्लावर्स खाते हैं, बच्चों के लिए जो पास्ता बनता है, वो कैसे हेल्दी हो सकता है. और हेल्दी का मतलब उसका टेस्ट हेल्दी नहीं होना चाहिए. कुछ चीज़ों का टेस्ट हेल्दी हो जाता है तो खाने में अच्छी नहीं लगती. तो टेस्ट अच्छा रहेगा और प्रोडक्ट आपका हेल्दी होगा. तो वी हैव स्टार्टेड दिस गिल्ट फ्री रेवोल्यूशन, which was the Go Narishi brand was born from the market gap. Everybody talks clean label in snacks, food, but nobody is talking about it in the daily staples. So we did. The problem with modern consumers is the guilt factor, as Deepti ji mentioned in her presentation. Everybody thinks processed food is bad. It is not the process which is bad, it is how it is processed which makes it bad or good. So at Go Narishi, we know that the feeling. You pick up any atta, pasta, or any ready-to-eat item, you want to go out, you pick up Haldiram, MTR, any ready-to-eat item, you know that it will not taste good, but you have to take it along. Because in many countries, it's very difficult to find the taste of India. So we have got into the category of flours, pasta, and ready-to-eat items, without reducing any nutritional value, without adding any preservative or lab grown items. So Go Narishi was founded by a team of food lovers, and me myself have got a 25 plus years experience of mechanical engineering background. I used to design machinery. I used to be a consultant for NTPC Limited. I designed many of their plants and machinery, so I have got a technical background. So what I wanted to do was, I wanted to bring technology into food and remove the preservatives. The result, we are one of the first
5 kg वैक्यूम पैक्ड फ्लावर, 5 किलो का हमारा जो आटे का पैकेट आता है, दैट इज वैक्यूम पैक्ड एंड वी डोंट ऐड एनी एडिटिव्स इन इट. अब आप लोग का नेक्स्ट सवाल होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईटीसी है, वो क्यों नहीं करती? द फर्स्ट इज इंटेंट, कोई ये करना नहीं चाहता. सेकंड इज कॉस्ट बढ़ती है. एंड द थर्ड इज टेक्नोलॉजी. लोग कहते थे कि पाउडर्ड चीज़ें वैक्यूम नहीं हो सकती हैं, बट विद माई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड हेल्प ऑफ माई टेक्नीशियंस वी हैव डेवलप्ड अ वैक्यूम पैकिंग मशीन, जिससे वी आर सक्सेसफुली वैक्यूम पैकिंग फ्लावर्स. अभी एक्सपोर्ट में देयर इज अ मेजर चैलेंज फॉर फ्लावर इज शेल्फ लाइफ. People who take the goods through the sea route to Europe or Australia or New Zealand, the transit time is 3 months और आटे की shelf life 3 से 4 महीने होती है. तो export करना is difficult. Now with our technology and vacuum packing, the shelf life of flour will be minimum 1 year. So we can export this item without any issues and without any किसी डर के बिना इसे export कर सकते हैं हम लोग. Next, flour में we are doing शरबती wheat flour. We are doing the best flour wheat which is available from MP. हम लोग MP से अपना wheat source करते हैं, विदिशा से, और उससे हम flour बनाते हैं. We are doing it because it tastes the best और health के लिए भी अच्छे benefits हैं. दूसरा wheat जो हम कर रहे हैं वो है एमर wheat, जिसे खपली गेहूँ कहते हैं. आजकल क्या है, लोग इसके बारे में बहुत जानने लगे हैं बिकॉज न्यूट्रिशनिस्ट जितने हैं, डाइटिशियंस, दे आर रिकमेंडिंग दिस wheat फॉर डायबिटिक्स, फॉर पीपल who want to be healthy, who want to follow a diet, because इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम है और इसके अंदर फाइबर कंटेंट सबसे ज़्यादा है. बट और ये आपको जान के हैरानी होगी कि इसका यील्ड, अगर एक खेत में 100 टन गेहूं उगता है तो ये सिर्फ 1 टन उगेगा. तो इसलिए ये इंडिया का अपना नॉन हाइब्रिड वेराइटी है वीट की. जो भी आज के दिन हम लोग खा रहे हैं, एवरीथिंग इज हाइब्रिड, एवरीथिंग इज लैब डेवलप्ड. क्यों? बिकॉज वी नीड मोर यील्ड पर एकड़. This is the only type of wheat which is non-hybrid and is India's heirloom wheat. लाल गेहूं कहते थे, इसका रेशा बड़ा होता है और दाना बहुत बड़ा होता है. It has got the most fiber. It is expensive, yes, but इसके benefits are far more than the cost. We also do gluten-free super flours, all kinds of millet-based flours. चाहे वो ज्वार हो, रागी हो, बाजरा हो, मक्का हो, all अमरंथ हो, all these kind of flours we are doing at our factory. Now, why do we stop at just flours? This is for the kids as well. बच्चों को क्या पसंद है? पास्ता. बच्चों को पास्ता पसंद है. पेरेंट्स इससे डरते हैं कि मैं बच्चे को गलत तो नहीं खिला रहा हूँ. तो हम लोग ने इस चीज़ को फिक्स करा, इस गैप को फिक्स करा. Our pasta you can feed to your kids daily. It is made out of 100% semolina. सेमुलिना एक लौता ऐसा वीट का प्रोडक्ट है जो हेल्दी है आपके लिए, आपके गट के लिए हेल्दी है और सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है. आर पास्ता कुक्स इन 2 to 3 minutes. नॉर्मल पास्ता कुक्स इन 10 to 12 minutes. क्यों होता है ये आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा. इट फील्स लाइट ऑन द स्टमक. प्लस वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ लाइन ऑफ मिलेट बेस्ड पास्ताज विच इज गुड for kids without tasting healthy. Taste उसका normal रहेगा, but it has got all the superpowers of millets. Everything that everybody talks about, we have an operational integrity. We have all the certifications needed. We follow complete transparency and traceability. We have the best in state food standards. We have been recognized multiple times by FSSAI. Whenever they visit, they take photographs, recommend us कि we have never seen a plant which is so clean. आटा बनाते हो आप, तब भी आपका प्लांट इतना क्लीन कैसे है? We'll show you a video, small video. So the vision is we want to revolutionize the food industry, commitment to quality, transparency, and we are poised to become a trusted brand for global buyers and exporters. Our complete intent is to export. इसीलिए we are developing all these technologies so that we can enhance shelf life and people should recognize that this is clean food. This is just a some photographs of our factory. This is our factory based out of Lucknow. We have been supported by the UP Horticulture Department and we are really thankful for their support, and with their support we were able to build this small unit and we are trying to enhance it. This is our factory and this is a small video if it works. This is our factory.
So we'll invite you to join us at hall number 5, UP Horticulture Pavilion near Pillar 22. Our stall number is stall number 2. And thank you so much for this opportunity. Thank you. Namaskar. Thank you so much, sir, for telling us that we do not have to choose between healthy and tasty. They can together be an option for us. And with that, I'll request to invite our next speaker. So we have Dr. Baljeet Singh with us, who is from Department of Horticulture and Food Processing. Welcome, sir. Thank you, ma'am. Good morning, everybody, and namaste. I welcome you all on the behalf of Department of Horticulture and Food Processing, Uttar Pradesh. अभी इट्स अ मैटर ऑफ वेरी प्राउड कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. वी आर इन एज ए होल एंड ग्लोबली वी आर फाइटिंग विद द ग्लाइसीमिक एंड ग्लूटिन. तो दिस इज़ द मेन थ्रस्ट, क्योंकि जहाँ तक द मैटर ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड अब द मैटर ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, वी आर आवर जर्नी हमारी अब फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तक जा रही है. एज ए इंडियन हम लोग इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड क्या दे सकते हैं, ग्लोबल मार्केट को हम क्या दे सकते हैं. वी हैव फ्रेंड्स फ्रॉम द अदर कंट्री ऑल्सो, तो दे कैन अंडरस्टैंड वी हैव द डाइवर्स क्लाइमेट, डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम, डाइवर्स सोइल टाइप्स. ये डाइवर्सिटी जो है हमारी ऑटोमेटिकली इट गिव्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू अवर डाइटरी बैलेंस. वी वर डिस्कसिंग अभी हमारे जो इनसे पहले जो हमारे पार्टिसिपेंट डिस्कस कर रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री ने ये है और हम ये कर रहे हैं, हम उस पर ग्लाइसेमिक पे काम कर रहे हैं, हम हेल्थ के लिए वो दे रहे हैं. तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स. वी हैव मिलेट्स, वी हैव ऑयल सीड्स, वी हैव पल्सेज, डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेज. इवन अगर आप मध्य प्रदेश में कुछ पार्ट ऑफ साउथ में जाएंगे तो वी विल गेट द मिलेट्स properly, and we are the very good producer of the millets also. और we are ranking even हम in the globally we ranks first in milk, pulse and spices. We rank first in this field. अभी fruits, veggies, rice, wheat, millets and बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसमें हम सेकंड रैंक कर रहे हैं. और मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल, व्हाई यू शुड कम टू इंडिया एंड व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन इंडिया. तो दिस इज बिकॉज ऑफ आवर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन. वी आर अ ग्रेट मार्केट फॉर यू पीपल. आप ब्रांडेड एंड गुड क्वालिटी एंड इंटरनेशनल लेवल का अगर प्रोड्यूस करेंगे तो नो डाउट इंडिया हैज़ अ गुड मार्केट ऑल्सो. तो हमारे पास इवन हमारी गवर्नमेंट अभी हमारे ऑनरेबल पीएम ने कल भी एड्रेस किया, सबको बताया कि वी रैंक थर्ड इन फूड मार्केट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये बड़ी और इवन हमारे स्टेट्स दे आर कमिंग फॉरवर्ड आल्सो, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू अवर फार्मर ऑल्सो, वो सो दैट कि दे कैन गिव यू इनपुट फॉर योर इंडस्ट्रीज. वो इफ दे विल ग्रो द गुड क्रॉप्स, गुड वेराइटीज, देन it will nourish your industry and you will give the good वो farm to fork जो बात होती है ना. तो we have चूंकि I am representing here horticulture part, not the farm part directly related with me, though I am also representing the processing, but directly I am related with the my education and my field. So it may be that's why जो consistency of my word so just getting disturbed because of that. So abhi with the help of different schemes, first is MIDH. MIDH is a scheme मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर. दिस इज ये लगभग पूरे इंडिया के अंदर है. हमारे अभी जो हमारे इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं, कंपनीज के लोग बैठे हुए हैं, अगर आपके साथ डायरेक्टली फार्मर जुड़े हैं तो दे कैन बेनिफिटेड प्री हार्वेस्टिंग में इनके साथ बेनिफिटेड हो सकते हैं. और इसमें बड़ा स्पेसिफिकली आप फ्लावर पे जाना चाह रहे हैं, आप वेजिटेबल पे जाना चाह रहे हैं, आप ऑर्गेनिक पे जाना चाह रहे हैं, तो दे कैन गेट बेनिफिटेड थ्रू द अवर गवर्नमेंट सब्सिडी. और वो आपके लिए भी एक अच्छा वो होगा और अच्छे प्रोडक्ट उससे आप तैयार हो सकते हैं. इवन अप टू पोस्ट हार्वेस्ट, अप टू पोस्ट हार्वेस्ट हम इस स्कीम में चीज़ों को करते हैं. इवन स्टोरेज जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारे इसमें कवर्ड होते हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं. उसके अलावा एक बड़ी
अच्छी सी स्कीम है छोटे इंटरप्रेन्योर्स के लिए। आपके साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े होंगे जिनको आप यूज करते होंगे कि वो हमारे लिए वर्क ऐसे क्या बोलते हैं उसको आउटसोर्सिंग के लिए, लाइक आउटसोर्सिंग ऑफ द स्मॉल कंपनी फॉर द बिग कंपनीज। तो आउटसोर्स के लिए आप इसमें हमारी एक PMFME स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसमें 35% का हमारा सब्सिडी है उसके लिए अप टू 10 lakhs है। तो यदि कोई आपके साथ जुड़ा हुआ आपका स्टेक होल्डर है एंड ही और शी इज प्रोवाइडिंग यू द तो आप उससे कह सकते हैं कि आप ये जो पैदा कर रहे हैं आप इसमें सब्सिडी ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से। दो दिस स्कीम ऑल्सो एग्जिस्ट एवरीवेयर ना इन कंट्री, पूरे स्टेट के अंदर है क्योंकि PM है तो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है तो सब जगह है। तो इसीलिए बहुत सारी स्कीम्स हैं ये जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। और फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी हमारे DD साहब डिस्कस करेंगे। और हमारी जो मैंने फिर वही बताया कि आप यू आर ऑल आर इन्वाइटेड हियर, आप इन्वाइटेड हैं यहाँ पे। आप क्यों करिए इंडिया के अंदर काम, आप बिकॉज वाई शुड यू डू वर्क इन इंडिया, वाई शुड यू डू फूड सेटअप फूड इंडस्ट्री इन इंडिया, बिकॉज वी हैव second largest population, we have largest crop diversity, we have climatic diversity, we have seasonal diversity, we have soil diversity, and that's why we have produce diversity. So you can have each and everything. You will have your cereals, pulses, oil seeds, and even in livestock production we are leading. So everything input what is favorable to your industry, that is here, and we people are ready to assist you, to help you as a pre-harvesting your assistance. Okay, thank you very much. Thank you so much, sir, for actually highlighting how, as India, we have so much potential and how we are going to grow for sure. And with that, I'm going to invite our next speaker. We have with us Mr. Anantesh Pratap Singh, the CMD of Bhartiyam Foods, and he's going to talk about value addition and growing trust from farm to fork. So please welcome him with a warm round of applause. Hi everyone, I'm here. I'll introduce myself as you have gone through Deepti's presentation, and I would introduce myself as I am husband of Deepti Chauhan and proud husband. We are probably I would say that we are first gen farmers turned entrepreneurs. फूड प्रोसेसिंग में आने से पहले हम लोग ने जो शुरुआत अपनी की है, अपनी जो जर्नी रही है, हम लोग सुबह सो के उठते थे, मेरे को पता है कि मेरा सामान तैयार है, खीरा तैयार है, और अगर मैं खीरा मंडी तक लेके समय पे नहीं पहुंचा तो वो खीरा सुबह 4 बजे से हार्डली जैसे ही धूप आएगी या सनलाइट रहेगी उसी समय इट इज़ मतलब मार्केटेबल सिचुएशन उसकी रही नहीं जाती है 10-11 बजे के बाद। तो यूपी सरकार ने हमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग शुरुआत से किया है हमारे बिज़नेस को डेवलप करने में। हमें एक राह पूरी दिखाई है, जितनी स्कीम्स का फ़ायदा हम लोग पॉली हाउस पे ले सकते थे। और एज अ फार्मर वी हैव ग्रोन अ लॉट फ्रॉम मतलब जो जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की थी हम लोग ने उनका पूरा यूटिलाइज़ किया है। पॉली हाउस में हम लोग को 20 लाख की सब्सिडी मिली है एज फार्मर्स, और नेट हाउस में हम लोग को 7-8 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। तो हैं हाँ, और यूपी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी हम लोग ने जो ली हुई है उसमें फूड प्रोसेसिंग पे सहयोग से 90% का योगदान सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने स्पेशली सोलर के लिए हमें दिया है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे ही मैं उनके अंडर एम्प्लॉयड हूँ तो स्पेशली आई वुड से कि जो भी इंडस्ट्री है शी इज़ रनिंग द इंडस्ट्री। और इतना सहयोग सरकार की ओर से हमें मिला है। फार्मर्स की बहुत सारी स्कीम्स है। फार्म टू टेबल की अगर मैं बात करूं तो जो ब्रिजिंग द गैप वाली बात है, आप एज अ कंज्यूमर
फार्मर्स को स्ट्रेंथन करते हो अगर आप प्रोसेस्ड फूड खरीदते हो। सुबह उठने से आप टूथपेस्ट जो यूज़ करते हो वो प्रोसेस्ड है। आप जो आटा, दाल, चावल, रोटी, सब्जी कुछ भी खा रहे हो, आपका किचन कोई प्रोसेस्ड फूड के बिना है ही नहीं। ये रियलाइज़ होता ही नहीं है लोगों की। सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं कि भैया प्रोसेस्ड फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। हर जगह ये रील्स, नए न्यूट्रिशन रोज आते हैं कि भैया प्रोसेस्ड फूड इज़ समथिंग दैट यू शुड अवॉइड, पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए। तो खाओगे क्या आप अपने से ये सच्चाई पूछो। आप अपना कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हो, पीछे लेबल पढ़ो, वेदर इट इज़ क्लीन, आपके खाने योग्य है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है कि नहीं, आप वो चीज़ देखो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इसी के साथ आई वुड एंड माई स्पीच। थैंक यू। Thank you so much, sir. So we have our next speaker with us, Dr. Harish Kumar, who is the director of RAC, Department of Horticulture and Food Processing, and he'll be talking to us about value addition and quality evolution in food processing. सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर नमस्कार। एक ज़माने की बात है कि जब घर में आटा, दाल, चावल, गेहूँ इस टाइप की चीज़ें आया करती थी और उन्हें बीनना, छानना, धोना, सुखाना, पिसवाना, ये सब प्रक्रियाएं हुआ करती थी। बदलते हुए दौर में लोगों के विचार भी बदले और विचार बदलने पर हुआ ये कि सभी लोग सोचने लगे कि अब हम हर गृहिणी की यही पसंद कि रेडी टू यूज़ हमको रॉ मटेरियल मिले। और इस बदली हुई सोच ने ओपन कर दिए स्टार्टअप्स के दरवाजे उन लोगों के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे स्टार्टअप्स के लिए फोकस करते हुए बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो लॉन्च हुई और स्टार्टअप्स के लिए वो बैकबोन बनी। और ये स्टार्टअप्स इनके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटा स्टार्टअप अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं है, वो कम कीमत में भी अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के सिर्फ उसके मन में एक संकल्प हो कि हमको कंफर्टेबल और स्वस्थ बनाना है अपने समाज को, और उसको वो चीज़ें पहुंचानी है, वो चीज़ें सर्व करनी है जो उसकी लाइफ में एक सोच भी बदले और उसका स्वास्थ्य भी बदले। वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें तो वैल्यू एडिशन में छोटा सा केवल हमने गेहूं लिया और गेहूं को लेकर के उसको हमने बीन दिया, उसकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग कर दी, उसकी धुलाई कर दी और पैकेजिंग कर दी, सिंपल। और यही जो है मार्केट में लोगों की पसंद बन जाता है। वही चावल सिंपल, उसकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और हमने उसका पैकेजिंग करने के बाद लोगों की सबसे पहली पसंद आजकल और सभी लोग जानते हैं कि जैसे सैलड्स को यूज़ करना चाहिए अपने दैनिक जीवन में, बट कुछ लोग तो लापरवाह होने की वजह से नहीं कर पाते, कुछ लोग समय कम होने की वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि सैलड्स को यूज़ करने के लिए आपको कुछ समय खर्च करना होगा अपना, उसे क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग ये सब करने के लिए सिंपल आपने उसको सिंप्लीफाइड कर दिया, उसको क्लीन कर दिया, उसको पील करके और श्रिंक रैपिंग करके और मार्केट में पहुंचा दिया, लोगों को कंफर्टेबल बना दिया। ऐसे ही टोमेटोज़ वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें कि आए दिन हम ऐसी खबरें न्यूज़ में देखते हैं कि किसानों को अपना उत्पाद जैसे टमाटर है या आपका आलू वगैरह है उसको उन्हें फेंकना पड़ रहा है या वो उसको खेत में ही छोड़ दे रहे हैं, क्यों? उनका सही कीमत नहीं मिल पा रहा। अगर इसका उसी फॉर्म लेवल पर ही हम वैल्यू एडिशन कर दें, वो डिस्कार्डेड मटेरियल जिसकी हमें मार्केट में कोई वैल्यू नहीं मिलनी, उसी को हम अगर प्यूरी में कन्वर्ट कर दें और उसके लिए कोई मशीनरी, कोई बड़े इक्विपमेंट्स और कुछ आवश्यकता नहीं होगी, सिंपल उसकी रिएक्शन प्रोसेस है। और साथ में अब चूँकि वैल्यू एडिशन में तो ऐसी मैंगो है या जितने भी फ्रूट्स हैं उनको जूस उन्हें कन्वर्ट कर देना है, पिकल बना देना, उनका जैम वगैरह इस टाइप उसमें कन्वर्ट कर देना। अब
क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हैं, इसलिए इन पे ज़्यादा फोकस मैं नहीं करूँगा। ये थोड़ा सा मैं जो है वैल्यू एडिशन के साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल के लिए, जैसे हम अपने अपने खुद को स्वस्थ रखने के लिए अपनी रूटीन चेकअप हम कराते हैं और ब्लड टेस्टिंग वगैरह कराते हैं, ये तो हम करा लेते हैं, भले ही वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। परंतु अगर बात आई जो हमें स्वास्थ्य देने वाला है, जो हमको जीवन देने वाला है फूड, उसके विषय में हम जो है थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं। उसकी टेस्टिंग के बारे में हम कभी नहीं सोचते कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम भोजन कर रहे हैं क्या उसमें मिलावट है। और ऐसा भी नहीं कि उनकी टेस्टिंग के लिए कोई बहुत मेहनत या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना हो। उसी के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए टेस्टिंग वगैरह, ये फैसिलिटीज़ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा वर्ष 2002 में एक ऐसी संस्था स्थापित हुई जिसका नाम रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर है, जिसका वर्तमान में मैं डायरेक्टर हूँ। और ये इसका उद्देश्य किसानों, विद्यार्थियों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों और आम जनमानस की लिए कम कीमत में कैसे उसको जो है उसके लिए समर्पित है ये संस्था। डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स, डिफरेंट टाइप के रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स वगैरह वगैरह। और जहाँ बात आती है मिलावट की, मिलावट के लिए तो मात्र 100-200 रुपये में ही हमारे यहाँ टेस्टिंग है। 100-200 रुपये की खर्च करके आप ये जान पाएंगे कि जो दूध आप पी रहे हैं, जो दाल आप खा रहे हैं, जो अनाज आप खा रहे हैं, वो कितना आपके लिए हेल्दी है, ये जानने के लिए। बट यहाँ मैं देखता हूँ कि लोगों में थोड़ी जागरूकता की कमी है। तो मैं आप सभी को इनवाइट भी करूँगा, अगर कभी मुझे सेवा का मौका भी प्रदान करें। ये जो आरफ्रैक है वो उद्यान भवन में ही स्थित है। इसमें थोड़ा सा इसकी तरफ प्लीज़ हैव ए लुक ऑन सम स्लाइड्स। विजन ऑफ आरफ्रैक, मोटो, आरफ्रैक लैब्स, यू कैन सी all these facilities are available: metal tracer, FTIR, GCMS, nutrition labeling, chemical analysis, hormone, steroids, pesticide residues, all these things can be analyzed. These training diploma programs, these are available. Bakery and confectionery, currently we are providing training on bakery and cookery for the JCO, Junior Commissioned Officer of Army. जब लखनऊ आएँ तो एक बार कोशिश करें कि हमें भी सेवा का मौका दें और हमारी संस्था का एक विजिट जरूर करें। थैंक यू। Thank you so much, sir. Sir, we'll invite you to speak, come on the stage. So, the next speaker that we have with us today is Dr. MP Singh, Deputy Director of Department of Horticulture and Food Processing, and he'll be talking to us about food processing policy of 2023. So, please welcome him. आज के इस नॉलेज सेशन में उपस्थित सभी साथियों का मेरा नमस्कार और सभी का बहुत बहुत आभार। किसानों, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, एंटरप्रेन्योर्स और सभी फूड प्रोसेसिंग स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए देश प्रदेश की प्रॉस्पेरिटी के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 फरवरी 2023 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 स्थापित की। इस नीति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत जो एम्स हैं, विजन हैं, और इसका विजन है टू इंश्योर बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, फार्मर्स का हो, इंडस्ट्रीज़ का हो, सभी के लिए बैलेंस से मतलब ये है कि जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हैं उस प्रत्येक स्टेक होल्डर को इसका बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं है कि किसान का जो रॉ मटेरियल था वो ऐसे ही चला जाता था मंडी में। अब हम फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो किसान को उसका मैक्सिमम प्राइस मिले।
maximum benefit to all stakeholders, establishing UP as leading state in food processing sector. हम ये कह सकते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 भारत सरकार की किसान संपदा नीति से मिलती जुलती है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति देश की सभी नीतियों में बेहतर नीतियों में से एक है। इसके ऑब्जेक्ट हैं टू इंश्योर फेयर एंड रिमूनरेटिव प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस टू ग्रोवर्स, वैल्यू एडिशन टू प्राइस ऑफ रॉ प्रोड्यूस, promote setting up of food processing industries, easy availability of processed food products to consumer at competitive price. ये हमारा पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट रैंक है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में। ग्रेन, मिल्क, शुगर, पोटैटो, पीज, मैंगो, गूजबेरी, इन सब में हम जो है बहुत अच्छा प्रोडक्शन है हमारा, और हम फर्स्ट रैंक रखते हैं। इसलिए जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत इजी है। ये हमारी की हाइलाइट्स हैं फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 की। अगर आप नया इंडस्ट्री, नई यूनिट कोई फूड प्रोसेसिंग की लगाना चाहते हैं तो उसके लिए 35% सब्सिडी है नई यूनिट लगाने पर। इसकी मैक्सिमम लिमिट 5 करोड़ है। और अगर हम पुरानी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हमारी रनिंग है, हम उसका अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन या एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसमें गलती से 25% लिखा, ये भी 35% है, और अप टू 1 करोड़ इसमें कर सकते हैं। सोलर पावर के लिए 75 kVA के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसकी बिजली की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये प्रोविज़न किया है कि अगर विमेन एंटरप्रेन्योर है तो उसके लिए 90% सब्सिडी, और अगर मेल एंटरप्रेन्योर है तो उसके लिए 50% सब्सिडी इस पर जो है हम देते हैं। ये अगर हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल में और एक्सपोर्ट विदेशों को कर रहे हैं तो उसके लिए 25% हम सब्सिडी जो है वो देते हैं। इसमें जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनको छोड़ करके अगर बाकी देश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा आता है उसका 25% हम सब्सिडी देते हैं। कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन की एक हमारी स्कीम है जिसमें 35% सब्सिडी है, और कुछ उसके पोर्शन पर जो IQF है, डीप फ्रीज है, फ्रोजन स्टोरेज है, उस सब के लिए हम 50% सब्सिडी देते हैं। दोनों को मिला करके कुल 10 करोड़ तक की सब्सिडी है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, अगर आप एक स्थान पर मिनिमम 5 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लाते हैं तो वहाँ पर हम और 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 करोड़ सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट, स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेज। बैकवर्ड फार्म गेट पर अगर आप जो है स्टोरेज की, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग की ये सुविधाएं करते हैं तो उसके लिए 50 लाख तक की सब्सिडी, ये नहीं सॉरी 5 करोड़ तक की सब्सिडी हम इस पर देते हैं प्रोसेसिंग के लिए भी। ये रीफर बैन अगर हम लेते हैं तो रीफर बैन के लिए हाँ इंटरेस्ट सब्सिडी है, ये हमारी 50 लाख तक 5 साल में 50 लाख तक की हम इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं। ये एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करने के लिए अगर 12.5 एकड़ ज़मीन हम एक जगह खरीदते हैं और बीच में कहीं रास्ता आ जाता है या किसी और की ज़मीन आ जाती है, वो चाहता है कि हम बेचेंगे नहीं और हमें एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर वहाँ डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि इसमें अलग अलग रेंज दिए, DM साहब को कितनी पावर है, कमिश्नर साहब को, फिर ऊपर शासन को कितनी पावर है, तो 12 एकड़ तक की DM साहब को परमिशन है कि वो उस लैंड के जो बीच में पड़ रही है उसे कहीं दूसरी जगह दे दें, चक रोड को दूसरी जगह दे दें और वो एक आपको एक कंसोलिडेटेड पोर्शन दे दें। CLU के लिए अगर लैंड यूज चेंज हम कराते हैं तो उसके लिए 50% हम जो है सब्सिडी देते हैं। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, अगर शहरी विकास डेवलपमेंट चार्जेस जो लगते हैं अगर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए हम कर रहे हैं तो 75% की सब्सिडी वहाँ पर मिलती है। अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए
हम ज़मीन परचेज कर रहे हैं, तो LOC जारी होने के बाद जब हमारी रनिंग स्टेज में इंडस्ट्री आ जाती है तो उसके लिए जो स्टैंप ड्यूटी लगी थी उसका 100% रिम्बर्समेंट यूपी गवर्नमेंट करती है। थैंक यू। Thank you so much, sir, for such an insightful session. And with that, we will like to invite questions from all our delegates. So if you have any questions, we are open to them. गुड मॉर्निंग सर। मोस्ट ऑफ द सेशंस में बेसिकली यही बात हाईलाइट हो रही है कि सोशल मीडिया इज़ सेइंग कि फूड प्रोसेसिंग इज़ नॉट गुड। तो बेसिकली मैं एक बार उस पॉइंट को सिर्फ रखना चाह रही थी कि सोशल मीडिया में, एंड आई वांट कि हम उसके बारे में आप हमें थोड़ी सी क्लैरिटी दे। दे आर सेइंग कि जैसे पहले टाइम पे जो फूड बनता था, लाइक हमने कोई खाना बनाया तो वो शाम तक अगर आप उसे रख दो तो ख़राब हो जाया करता था। तो आज के टाइम में व्हाट दे आर एडिंग टू द फूड कि वो फूड हमारा महीनों सालों सालों तक चले जा रहा है, वो ख़राब नहीं हो रहा है। द क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड। व्हाट हैपेंस इज कि फूड को स्टेबलाइज करने के लिए देर आर एडिटिव्स और एनीथिंग। द अदर थिंग इज टेक्नोलॉजी। आप इफ़ यू हैव सीन शुभांशु शुक्ला, आर एस्ट्रोनॉट हु वेंट टू द International Space Station, he took with him gajar halwa from India. So what did they do? There's a technology known as freeze drying. We have those machines imported from the US. What essentially it does is कि it takes out water from the food. It does not dehydrate. Heat से उसे dehydrate नहीं करते हैं। Dehydration के दो techniques होते हैं। एक we dehydrate using heat. उसमें 60% of nutritional values dies. Second is an advanced freeze drying technology, in which we freeze the food, convert it into ice, then we suck that ice out using vacuum. So this is an advanced technology. It requires many stages, and in this there is nothing added. We essentially are taking out water from the food, because water or moisture is what makes the food go bad. After that, if you keep that food items in a vacuum packed storage, you can keep it not only for months, for years. I'm talking some food items which can stay fresh for 20 years. Then there is also, in using this technology, आप curd, दही जमाते सब लोग, everybody has culture of curd. You freeze dry your curd. After 7 years, 8 years, you take that curd out, put it in milk, you will get curd again. So this is 100% a viable option. It is expensive, yes, but we are trying to make it affordable and make it approachable to everybody. So you are more than welcome to try out the products. We are at hall number 5, first floor, and the technology is there now. First it was preservative. जैसे आप हल्दीराम का खाते हो तो वो क्या है, उसको आप फाड़ के बिना गर्म करे भी खा सकते हो, because it has got additives and you can taste those additives in your mouth. What we are giving is, you just need to add water. We have taken out water, you put in water again, it will become the food back again. Essentially what happens is, अगर आप दाल चावल को freeze dry कर दोगे, it becomes like लइया. You put water back into it, it will again turn into dal chawal. So this technology was being used for astronauts. Now we are trying to bring it to local people as well. Okay, thank you. I would like to add some more things. Actually, मैम ने जो पूछा है अभी कि ये मिथ्स कुछ पब्लिक के बीच में है कि प्रोसेस फूड में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। एक्चुअली अभी अभिषेक जी ने जो बताया वो तो उसमें तो जो टेक्निक्स थी उसमें कोई केमिकल्स का यूज़ नहीं था, बट मैं उन टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। केमिकल्स का जो यूज़ है वो यूँ ही नहीं कि हम जितना चाहें उतना केमिकल यूज़ कर लें, उसमें एक लिमिट दे रखी है कि आप नॉट मोर देन दिस लिमिट यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर केमिकल, and this limit is decided by those pupils who are doing too much research and development, and after a long journey of the research, this limit is decided, and every chemical or everything is has its permissive limit by your body. कुछ भी हो, जो भी आप खाना खा रहे हैं, आपने अगर अनाज खाया, दालें खाएं या जो भी खाया, उसमें अगर आप कह रहे हैं कि काजू खाने से बहुत अच्छा है, तो काजू को भी अगर ज़्यादा मात्रा में खाएंगे वो भी नुकसान देगा, बादाम को भी ज़्यादा मात्रा में खाएंगे वो भी नुकसान देगा, देसी घी भी ज़्यादा मात्रा में खाएंगे वो भी नुकसान देगा। तो इसमें जो लिमिट बनाई गई है वो एक रिसर्च के बाद कि इस लिमिट तक यदि आपने यूज़ किया ये केमिकल
तो इस लिमिट को एक आम व्यक्ति की बॉडी ईजिली एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट कर सकती है, और ओवर दैट लिमिट इट कैन बी हार्मफुल फॉर एवरीवन। तो ये लिमिट के अंदर में। दूसरा जो है, अब चूंकि हमारी आदत जो बनी हुई है सदियों से कि हम फ्रेश चटनी या फ्रेश जो भी मटेरियल्स लेने के हम आदी हैं, अब हो क्या रहा, मार्केट में ऐसी बहुत सारी जो छोटी छोटी जो ब्रांड नहीं है या लोकल जो वेंडर्स हैं, उन्होंने जैसा चाहा वैसी अपनी विदाउट लिमिट, कोई उनको FSSAI रूल्स वगैरह इन सब स्टैंडर्ड्स का कोई मतलब नहीं, उन्होंने जैसा चाहा अपने मटेरियल को उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए किसी भी लिमिट तक चले गए। वो हमारे लिए कहीं हार्मफुल है। तभी कहा जाता है कि आप देख करके कि क्या लोगोस हैं, कैसी टेस्टिंग है, कैसा उसका क्वालिटी कंट्रोल किया जा रहा है, कौन सी ब्रांड क्या कर रही है, तभी आप उसका यूज़ करें। परमिसिव लिमिट, जैसे आजकल अफ्लाटॉक्सिन पे भी बहुत ज़्यादा जोर है। अब वो ये जो लिमिट है, ये लिमिट भी कंट्री टू कंट्री ये भी वेरी करती है कि बहुत सारी चीज़ें अफ्लाटॉक्सिन में ही, हमारे इंडिया में 20 ppb इसका जो है वो है परमिसिव लिमिट, और वही अगर USA के लिए चले जाएँ तो 5 ppb। तो ये डिफ़र करता है क्योंकि हमारी थोड़ी इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम लोगों को परमिसिव लिमिट भी थोड़ी ज़्यादा है हम लोगों की। और एक टेक्नोलॉजी ऐसी है, जैसे अभी आपने बताया ड्राइंग कैनिंग टेक्नोलॉजी। अभी हमारे जो एक फर्स्ट जो स्पीकर आई थी दीप्ति जी, इनका आपका खुद का एक बहुत अच्छा इनका यूनिट चल रहा है जो कैनिंग कर रहा है। कैनिंग टेक्नोलॉजी, इसका हमारे इंडिया में इस कैनिंग टेक्नोलॉजी को देने वाला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो लखनऊ में है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। ये फादर ऑफ फूड प्रोसेसिंग भी कहलाता है। ये एक इकलौती ऐसी टेक्नोलॉजी है उस समय की। गुड मॉर्निंग। सो अभी रिसेंटली हमने बात किया PMFA स्कीम की और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो यूपी के डिफरेंट, तो इस चीज़ पे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो किस रीजन्स में खुल रहे हैं, लाइक रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़, एंड इसका रूरल एरियाज़ में ओपन होने के क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, एंड इसके लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट आर बीइंग डन। फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप रूरल एरिया में भी खोल सकते हैं, लगा सकते हैं, और UPSIDC में भी लगा सकते हैं। दोनों में सेम बेनिफिट हैं। केवल सोलर एनर्जी का अगर लाभ आपको लेना है तो वो रूरल एरिया में मिलेगा, और बाकी जो स्कीम है वो सब रूरल एरिया में भी और UPSIDC में भी। आप कहीं चले जाइए, रूरल एरिया में जाएंगे तो लैंड यूज चेंज कराना पड़ेगा, आपको धारा 80 करानी पड़ेगी, कृषक भूमि घोषित करानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जो है उस पर अपनी यूनिट रन कर सकते हैं। क्लियर? एक और क्वेश्चन था। सो एक चीज मैं उसमें बता दूं। हाँ जी। जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था, आप इनकम मतलब एस्टैब्लिश एनीवेयर रूरल सेक्टर और अर्बन सेक्टर, उसमें क्या है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़ेगा रूरल एरिया में, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट आपको असिस्ट करेगी। जो डेवलपमेंट आपके खर्च होंगे सर या लैंड परचेज करेंगे उसमें भी आपका होगा, और अर्बन एरिया में एवरीथिंग विल हैव द ऑलरेडी बस इतना सा। एग्जैक्ट। सो यस, मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे रूरल अर्बन एरियाज में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, बट वो ऑब्स्टेकल्स जब हम रूरल एरियाज में आते हैं सेटअप करने, सो रूरल एरियाज में मेजर प्रॉब्लम इज़ ऑफ employment also. Communication is there, but in terms of employment, when we look, majority of jobs are in cities. So my thought of setting up processing units in rural areas is one way to solve that problem. So I wanted to understand what are the ways. So you mentioned there are facilities provided by the government to solve these obstacles of communication infrastructure building. So can you also put some light on what are the schemes under which these are covered? हमारी जो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 जो स्टेट गवर्नमेंट में लागी है उससे अच्छा। Some delegates are from another countries also. Friends, if you have any queries, any questions, suggestions, please. You people are from other countries, and according to your opinion. Foreign delegates are requested to speak in English. We are comfortable in English. Please ask your question.
our expert will reply. Thank you so much for giving us this opportunity to say something. Unfortunately, we're trying to follow, we're so much interested in the topic, so we're trying to follow, but we couldn't because of the language barrier. So हमारे पास वो है क्या इसकी पेन ड्राइव्स वगैरह हैं क्या कुछ नहीं so we are it's If you very could provide the unfortunate. material I on really wanted to understand, like, you're not able to go through what we had presented. We tried to make. not that much. Not Yeah, we that tried to much, not keep that our much. language more into English. Like, if there are certain presentations where you find the gap, or you had not able to gone through the most of the things. The what- last presentation, we were so much interested in finding out Okay. what are you saying about this last presentation? So we're trying to follow. We couldn't. In the last presentation, Yeah. what we had, okay. We couldn't. So last So presentation can is. is it possible to put more of English so that maybe we follow? Yeah, sure. The last Please. presentation by. It was related with quality control, na? नहीं, No, जस्ट it's लाइक about फूड the- प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023. It's about the policy. Policy. You see, the problem that we have in our countries is post-harvest losses. So we wanted to find out how you are doing it this side. So we couldn't get how you manage that. Okay, so like from our presentation, entirely in all the presentations what we had covered is about the food processing, which we are doing is to cover the post-harvest losses, like the kind of units Mr. Chaturvedi or I, what we had shown in our presentation, is mainly about we are buying it directly from the farmers, their produce. Like what I am buying fruits and vegetables, which are highly perishable in nature, from the farmers directly, and then I processed it into juices, into pickles, and into the canned food. So that's the same way, like staples category we are doing. We are making millets, pasta, and all. So entirely all the presentation, the theme line is that only how we are saving the farmers' losses. So the policy what sir has shown in the last presentation, that is the main policy what the government of Uttar Pradesh is giving it to the entrepreneurs, to support the entrepreneurs so that more and more industries that get set up at the state to attract like the foreign buyers, and also that we will be able, like I have presented my presentation about the Shahri mangoes. So that is the main produce of the region where I lives in, at Lucknow. Okay, so what we wanted, that I agree that the freshness of that mango, we may not be able to send it to the parts of the world. But what we are doing is, we are preserving it at the pure harvest, like freshness. And then we are like sending it across globe. So if I am able to clear something. Wonderful. Thank you. Welcome. और किसी का कोई क्वेश्चंस जो हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट या जो इंडस्ट्री के आए हुए हमारे जो CMD MD जो हैं वो बताएंगे आपको। और किसी का कोई क्वेश्चंस है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा क्वेश्चन था, हम लोग ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग पे, उसमें जो है हम लोग अपने हैंड से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें ऑर्गेनिक कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड से आ रहा है जैसे गेहूं वगैरह, उसमें जो केमिकल वगैरह यूज़ हो रहे हैं, उस चीज़ों को हम कैसे हटा सकते हैं ग्राउंड से? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? देखिए ऐसा है ना कि लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑलमोस्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हमारे पास फार्मर्स इस तरह के हैं जो कि मतलब जीरो केमिकल फार्मिंग पे आ गए हैं। एक तो ये चीज़ होगी वो अपने आप से कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होगी कि सर्टिफिकेशन उनका बहुत ज़रूरी है। आपको चूँकि इंडस्ट्री पार्ट है आपका, तो इंडस्ट्री के लिए सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि भाई आप जीरो ग्रो कर रहे हो, बट वो जीरो है कि नहीं है, वो विल सर्टिफाइड दिस थिंग। तो कई लोग सर्टिफाई करवा चुके हैं अपना, ठीक है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का होता है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कई लोग करवा चुके हैं। इसमें अभी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो FPOs हमारे बने हुए हैं,
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज भी कहते हैं उसको। तो कई सारे एफपीओज हमारे ऑर्गेनिक पे ही काम कर रहे हैं। तो आपके जो बायर्स होने चाहिए, जिनसे आप इनपुट्स ले रहे हैं, कच्चा माल जिनसे ले रहे हैं, रॉ मटेरियल जिनसे ले रहे हैं, तो वो सब रिकॉग्नाइज्ड होंगे, तो आपको ऑलरेडी वो सब चीज़ मिलेगी। क्योंकि जैसे आप कंपनी हो ऐसी वो भी कंपनी है, तो दे ऑल्सो हैव देयर ऑन रेपुटेशन, है ना, और उनकी भी एक मार्केट वैल्यू है और मार्केट ब्रांड है उनका भी। तो आप यदि इस तरह से करते हैं, तो जैसे अभी शरबती गेहूं का जो जिक्र किया, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। ऐसी बहुत सारे गेहूं का मार्क का जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। तो पहले देखिए ड्यूरम को बीट करता चला जा रहा है, पहले प्रोसेसिंग में केवल ड्यूरम का आता था। चित्रकूट बांद्रा मंडल में जो है, तो नहीं, मध्य प्रदेश में मेनली पूरे मध्य चित्रकूट, यहाँ तो केवल दो तीन मतलब हमारा जो केवल बुंदेलखंड पार्ट है ना, वहाँ पे केवल होता है ज़्यादातर। लेकिन वहाँ पे वो वाला होता है जिसको मतलब जिसको हलना कहते हैं, कटिया गेहूं, हाँ, जीरो गेस, जिसकी दलिया बहुत फेमस है। आप जो है ना, तो आप एमओयू कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जैसा आप कोई चीज़ करनी है, आप आइए डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फार्मर के साथ एमओयू करिए, वो फार्मर आपके साथ एमओयू करेंगे, ग्रो करके आपको देंगे। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम यही आती है कि ऑर्गेनिक में थोड़ी सी ईल्ड कम रहती है, तो फार्मर का थोड़ा सा इनकम थ्रेट आती है ना। तो आप एमओयू करिए और हम लोग करवाते हैं आपको एमओयू, फ्रूट्स वेजिटेबल का हम करवाते हैं। और उसका अगर ग्रेन्स की जरूरत पड़ेगी आपको, तो या मिलेट्स की जरूरत पड़ेगी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करवाएंगे आपका। तो हम हैं वहाँ पर, प्री हार्वेस्टिंग में भी हैं हम लोग, और प्रोसेसिंग का तो चल ही रहा है यहाँ पे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये हमारा चूँकि सेशन समाप्त की ओर अग्रसरित है, तो मैं अब मिस्टर जो हमारे फिक्की के कोलैबोरेशन से, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के कोलैबोरेशन से जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो मैं मिस्टर जय श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूँगा कि आए, जो हमारे स्पीकर्स थे जिन्होंने अपना लेक्चर्स दिया, उनको कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मैं मिस्टर जय श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले डॉक्टर MP सिंह जी, जो डिप्टी डायरेक्टर फूड प्रोसेसिंग, डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, लखनऊ से हैं। डॉक्टर बलजीत सिंह जी ने, जिन्होंने जो है अपना लेक्चर दिया अमूल्य, मैं उनसे अनुरोध करूंगा आए डायस पर अपना गिफ्ट। डॉक्टर बलजीत सिंह जी। थैंक यू सर। मिस्टर हरीश सागर जी, डायरेक्टर आरफ्रैक। दीप्ति चौहान, जो भारतीय फूड से हैं, दीप्ति चौहान। मिस्टर अभिषेक चतुर्वेदी, एक और बचा होगा, मिस्टर अभिषेक चतुर्वेदी। क्योंकि हस्बैंड वाइफ आप दो लोग हैं, इसीलिए एक ही को मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब चूँकि मेरा ये जो सेशन था फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 से लेकर के प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट में, तो ये समाप्त की ओर है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो स्पीकर्स यहाँ आए और उन्होंने अपना फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के बारे में या अदर्स क्वालिटी कंट्रोल्स, प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट में जो अपना योगदान दिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। इसके साथ ही जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, इंडस्ट्री के आए हुए हैं, उनको भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साथ में जो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स के जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, जो हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। इसी के साथ में हमारे पर जो हमारे पॉलिसी 23 के जो एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं, जिन्होंने लाभ लिया, और जो हमारे स्पीकर्स भी हैं, गेस्ट लेक्चरर भी रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो हमारे डिपार्टमेंट से आए हुए फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर्स, स्टाफ्स, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और बहुत बहुत सा ढेर सारा प्यार हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और फिक्की का, जिन्होंने ये सेशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया, उनका मैं बहुत बहुत रेडी और आभारी हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि अगले साल इसी समय या जो भी डेट हो, फिर हम लोग आपसे मिलेंगे यहाँ पे।
बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर फूड प्रोसेसिंग हॉर्टिकल्चर है, उनका भी मैं फिर पुनः स्वागत अभिनंदन करते हैं और उनकी अनुमति से मैं इस कार्यक्रम की समापन करने की घोषणा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।